বিশ্বনাথৰ ভীমাজুলিত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেডেটৰ উদ্যোগত নাবাৰ্ডৰ সহযোগত প্ৰাকৃতিকভাৱে কৃষি উৎপাদন কৰা পদ্ধতিৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত মুনীন্দ্ৰনাথ য়াংটে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত গহপুৰ, কৈলাজুলি আদি কৰি বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কৃষকসকল আহি এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকে পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ সৌভাগৰ পালেকৰ। কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত মুনীন্দ্ৰনাথ য়াংটে, নাবাৰ্ডৰ জিলা প্ৰবন্ধক সুমন চেটাৰ্জী, বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী ডিন ৰণেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন, বিশ্বনাথ জিলা কৃষি বিষয়া বাণেশ্বৰ বে, কেডেটৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন হাজৰিকা আদি কৰি প্ৰায় ৫ শতাধিক কৃষক। বিশ্বনাথৰ পৰা ৰমেশ চন্দ্ৰ চৰেণৰ ৰিপৰ্ট, JNKD নিউজ। অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইয়াতে আমাৰ পদ্মশ্ৰী সুভাষ পালেকাৰ চাহাব আহিছে। তেখেতৰ যিটো সুভাষ পালেকাৰ যিটো মেথড আছে, সেই মেথডটো ইয়াত অৱগত কৰিব। নেচাৰেল ফাৰ্মিঙে, কিন্তু তেখেতৰ এটা নিজস্ব মেথড আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত অৱগত কৰিব। তেওঁলোকে অৱগত কৰিব। অৱগত কৰাৰ পিছতে আমি গম পাম যে কি ধৰণে খেতি কৰিলে। তেখেতে এতিয়া কোৱা মানে তেখেতৰ যিটো ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমত কৰিলেও তাৰমানে আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰ পৰা সমানেই উৎপাদন হ'ব আৰু মানুহখিনি যি খাদ্য প্ৰস্তুত হ'ব সেই খাদ্যটো নিৰোগী হৈ পেলাই খাই জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু তেখেতে এটা ইয়াত মডেল দিব 1 একৰ মাটিত কেনেকৈ সকলো ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰি। অকল ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে সকলো মিক্স ক্ৰপ কৰিব কেনেকৈ পাৰি। তাৰমানে আমাৰ ইয়াত তেওঁ দেখিছে যে অকল ধান খেতি কৰে। ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে বাকী সকলো ধৰণৰ খেতি, ঘৰত যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, খাদ্যৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, সকলো ধৰণৰ ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি সকলো খেতি কৰিব পৰা এটা যিটো মডেল, সেই মডেলটো তেখেতে ইয়াত উত্থাপন কৰিব এতিয়া ট্ৰেইনিঙত। তাৰপিছতে আমি গোটেইখিনি কৃষকসকলে গম পাব যে কি ধৰণৰ মডেল প্ৰয়োজন হয়। প্ৰয়োজন হ'লে মানে আমাৰ যিটো নেচাৰেল প্ৰাকৃতিক খেতি, সেই মডেলটো তেখেতে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব। তেখেতৰ নিজস্ব এটা মডেল আছে। সেইখিনি নিশ্চয় আমাৰ খেতিয়কখিনি উপকৃত হ'ব। কাৰণ আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিবোৰ ঔষধ চব্জি প্ৰস্তুত হৈ আছে, শাক পাচলি, এইবোৰ আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰিয়া কৰি আছে। যেনেকৈ এতিয়া ডায়েবেটিছৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ ৰোগ হৈছে, ছালৰ ৰোগ হৈছে। এইবোৰ সকলো ৰাসায়নিক মানে যি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে, ৰাসায়নিক হৰমনেল যিখিনি ট্ৰিট কৰিছে, এইবোৰৰ ফলতে আমাৰ মানুহৰ শাৰীৰত বিভিন্ন বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এইখিনি নোহোৱাকৈ যিটো নেচাৰেল কৃষি আছে, এই কৃষিৰ দ্বাৰাও তাৰমানে যথেষ্ট উৎপাদন কৰিব পাৰি। সেই বিষয়ে তেখেতৰ যিটো মডেল, সেইটো ইয়াত উপস্থাপন কৰিব। তাৰপিছত আমি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিম। एक प्रोजेक्ट चालू किया था, उसको हम लोग ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसके तहत हमने 250 किसान को चयनित करके उनका 1-1 एकड़ में वाड़ी डेवलप करने का प्रयास किया था। तो उसी प्रयास के तहत हमने लीची का या तामुल का हो, या उसके साथ साथ आपका कोकोनट एंड बॉर्डर में आसाम लेमन हो या एप्पल बेर, उस टाइप का पौधारोपण का हमने कार्यक्रम लिया था। एंड उसके साथ जो आपका इंटरक्रॉपिंग में उनका जो वेजिटेबल्स हो गया या वाटरमेलन जैसा क्रॉप्स को हमने प्रमोट करने का कोशिश किया। तो उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि हमारे जो ट्राइबल किसान हैं, बोडो किसान हैं, तो वो लोग नेचुरली जो है केमिकल फार्मिंग नहीं करते हैं। वो उस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको एज अ मॉडल हम लोग एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में इसको डेवलप किया जाए, ताकि बिना कोई केमिकल के, बिना कोई दवा, बिना कोई पेस्टिसाइड जो है हम लोग इधर फसल उगा पाए एंड किसानों को एक सस्टेनेबल इनकम जो है हम लोग दे पाएँ। क्योंकि इधर का किसान जो है, उनके पास जो है जमीन का जो है कोई कमी नहीं है। तो मिनिमम 4-5 एकड़ जमीन सभी लोगों के पास है। अगर हम लोग उनके जो लैंड रिसोर्सेस है, उनको अगर हम लोग सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ, तो उनको एक अच्छा इनकम का जो है सोर्स हम लोग इधर के लोगों को दे सकते हैं। साथ ही साथ आसाम का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ताकि जो बाहर के राज्य के ऊपर आसाम का जो डिपेंडेंस है, सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर हो या दूसरा सीरियल्स के ऊपर हो, उसका डिपेंडेंस हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हमारे जो ट्राइबल किसान है, मेहनती किसान है, उनको जो चीज़ चाहिए वो एक सही गाइडेंस चाहिए, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग मोटिवेशन चाहिए। जो वो चीज़ जो है हम लोग नबार्ड की तरफ से भी हो या बैंक के माध्यम से ऋण देना हो, हमारे एडीएम साहब भी आज उपस्थित है, तो वो चीज़ हम लोग करके एंड गवर्नमेंट डिफरेंट के जो स्कीम्स वगैरह है, जैसे सोलर पम्प्स इंस्टॉल करना इरीगेशन के कारण से, या हम लोग जो है एक नया चीज़ जहाँ जो आसाम में अभी तक प्रचलित नहीं है कि इधर जो पॉन्ड बना के जो इरीगेशन करने का जो सिस्टम है, वो चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो ये सब बहुत सारा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो है नाबार्ड के माध्यम से हम लोग इस एरिया का एक हॉलिस्टिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो विश्वनाथ के डीसी सर हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहता है।
एंड साथ साथ हमारा जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस के सीजीएम लोकेंद्र दास सर है, उनका भी पूरा सहयोग रहता है हम लोगों के प्रति। जो हम लोग प्रपोजल नाबार्ड की तरफ से भेजते हैं एरिया का विकास के लिए, वो तुरंत जो है सर का इसमें आशीर्वाद मिलता है। तो इस के माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ के बोडो लोगों के लिए, किसानों के लिए एक नई टेक्निक यहाँ दे और इनको इनके मौजूद खड़ा करने के लिए उद्युक्त करे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास नाबार्ड ने किया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ धान की एक ही फसल लेते हैं, पानी तो पर्याप्त है लेकिन रबी की फसल नहीं लेते, तो ये गलत है। रबी ले सकते हो, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर किसान नहीं है, तो उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और एक एकड़ में कम से कम 2 से लेकर 6 लाख रुपए का उत्पादन इसको एक साल में कैसे मिले, ऐसे मॉडल में मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ की जो सुपारी है, नारियल है और स्पाइसेस है, कॉफ़ी कोको, इनका भी बढ़िया मॉडल हम इनको देने जा रहे हैं।